session we will discuss or we will continue our previous session which we have already discussed. In the previous lesson or in the previous session we have discussed about the history of internet or network. We have also discussed about type of network, जहां हमने डिस्कस किया था कि जो नेटवर्क है वो हमारा चार प्रकार का होगा, जिसमें एक पैन था, एक लैन था, एक वैन और एक आपका मैन, जिसमें हमने डिस्कस कर दिया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था अपनी नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में। उसके बाद वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट स्विचिंग टेक्निक्स which have basically three types: circuit switching, packet switching and message switching. Then we have also discussed about the network device. नेटवर्क डिवाइस हमारे ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस भी करेंगे और इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स है मोस्टली आपका जो नेटवर्क डिवाइस है और जो आपकी नेटवर्क टर्मिनोलॉजी है उनसे कंसर्न आपका रहेगा। Then we have also discussed about the mode of transmission, in which we have discussed about guided media and unguided media. We have different type of transmission, and in a mode of transmission we have also discussed about digital and analog transmission. We have also discussed about serial and parallel transmission. We have also discussed about synchronous and asynchronous transmission. Then in this chapter or in this session we will discuss about the transmission media. Let's start the topic. चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक आपका है वो कंसर्न है आपके कंप्यूटर नेटवर्क से ही। जो हमने पीछे वाले सेशन में छोड़ा था उसी सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस सेशन के अंदर जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। Then we will discuss about network topology and we will also discuss about network protocol. जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीछे हमारा सेशन हुआ था उस सेशन में हमने अपने कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में स्टडी किया था। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडिया हमारा वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके माध्यम से हम डाटा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं। We can send the data from the source node to destination node. We have basically two type of transmission medium, that is wired or unwired, or we can call it guided or unguided media. हालांकि हमने guided media के बारे में लास्ट सेशन डिस्कस कर लिया था, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू रिकैप मैं करवा रहा हूँ। अब इसके अंदर यदि हम देखेंगे तो गाइडेड मीडिया हमारे पास तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट वन वी हैव कोएक्सियल केबल, देन वी हैव ट्विस्टेड पेयर केबल, we have also fiber optic cable. In unguided media we have radio wave, microwave and then we have infrared waves. In microwave we have terrestrial microwave and satellite microwave. So let's discuss first of all about wired media. Wired media, first of all we have यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या आता है? क्वेश्चन मोस्टली ये रहता है कि आपको कोई भी एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन के अंदर वो पूछेंगे आपसे विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी यूज्ड और विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज यूजफुल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ध्यान रखें ट्विस्टेड पेयर केबल जो होगा इसके अंदर जो हमारा मैक्सिमम जो लेंथ होता है आपका वो आपका 100 मीटर का होगा, और it is mostly wise cable for creating small computer network. इनके हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो साइज है वो छोटा होता है, और जो हमारा RJ45 कनेक्टर है it is used to connect the cable on the internet. There is basically two type of twisted pair cable. First one we have shielded twisted pair cable, we can also call it STP. Then we have unshielded twisted pair cable which is known as unshielded UTP. Here we have a cable. This is the example of UTP. In UTP there is basically 7 categories, each suitable for a specific computer. In computer network mostly Cat5, Cat5e and Cat6 cable are used.
अब यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो केबल है HTP है चाहे UTP है, बेसिकली वो 7 टाइप की होगा, जिसमें कैट 1, कैट 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जिसको हम बोलेंगे। कैट स्टैंड फॉर कैटेगरी। यदि हम ध्यान दें यहाँ पे तो कैट 1 जो हमारा केबल होता है, इट कैन प्रोवाइड द स्पीड ऑफ 0.1 Mbps। Then Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5 and Cat 6 cable, it can provide the speed of 200 Mbps and mostly can be used in telephone line, DSL line and LAN. Then we have coaxial cable. Coaxial cable is consist of two conductors which share a common axis. Inner conductor is a straight wire, outer conductor is a shield that be braided over a coil and can carry data for a large distance, and it can carry the distance of from 185 meter to 500 meter. यहाँ ध्यान देने का पॉइंट ये है कि जो हमारा कोएक्सियल केबल है, इसके अंदर जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपका है वो 185 मीटर से लेके 500 मीटर तक आपका हो सकता है। यदि हम बात करें हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल की, उसके अंदर जो डिस्टेंस आपका है वो आपका मैक्सिमम 100 मीटर का आपका हो सकता है। जो आपका कोएक्सियल केबल है, इट कैन प्रोवाइड द बैंडविड्थ रेट ऑफ अप टू 450 Mbps. On the other hand, in twisted pair cable in Cat 6, we can get the data transmission rate up to 200 Mbps. कोक्स केबल की यदि हम बात करें तो बेसिकली वी हैव 3 सब कैटेगरी: RG58, RG59, RG11. RG stand for radio guide. Then we have RG59 which can be used for cable or TV, RG58 which is thin internet, and then RG11 which is thick internet. Then again we have fiber optic cable. This is the cable which can be used for long distance, and it is made up of thin strand of glass about the thickness of a human hair, and it is arranged in a bundle called optical fiber cable, and it can be used to transmit data through light signal over long distances. It can carry data for a long, very large distance and at a stretch not susceptible to electromagnetic field. And the main advantage of this cable is that it can provide a high transmission rate for the user, but the most disadvantage for this cable is that it is most expensive but most efficient cable for computer network. यदि हम इनको शॉर्ट में देखें तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा कवर हो जाता है। ये टेबल आपका उस पूरे क्वेश्चन को कवर कर देगी। We have basically 3 cables: twisted pair cable, coaxial cable and optical fiber cable. यहाँ से यदि हम देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कि ट्विस्टेड पेयर केबल मींस यदि हमारे पास कोई सिचुएशन आती है और उसके अंदर सपोज करो कि 2 बिल्डिंग है और 2 बिल्डिंग के बीच में स्पेस यदि हमारा 100 मीटर से कम है तो वहां पे क्वेश्चन ये आता है कि विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया वी कैन यूज। तो वहां जो आप अपना ट्रांसमिशन मीडिया चूज करोगे वो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है। यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो हमने लास्ट चैप्टर में आपका जो नेटवर्क डिवाइसेस है उसमें पढ़ा था, एक हमारा डिवाइस आया था जिसका नाम था रिपीटर। रिपीटर वी कैन यूज and this is the kind of hardware, network hardware, which can be used to regain the signal quality. Then we have coaxial cable which can cover a distance up to 185 meter to 500 meter, and in optical fiber cable there is no limit for the distance. In the next we have also the difference in transfer rate. Twisted pair cable provide 10 Mbps to 10 Gbps speed. Then in coaxial cable it provide 100 Mbps, and the speed in optical fiber cable is more than 100 Gbps. चलिए अब हम हमारा जो अगला मीडिया है उसके ऊपर हम बात करेंगे और ये हमारा है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया
which is also known as wireless media. It is the technology which is known as wireless networking technology. और वायरलेस के अंदर जो डाटा है हमारा वो आपका ट्रेवल करेगा थ्रू एयर। इसके अंदर हमारे सबसे पहले हमारे पास आती है रेडियो वेव। यदि हम बात करें किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया की अनगाइडेड के अंदर, तो वहां पे बेसिक डिफरेंस जो होता है वो होता है किसी भी सिस्टम के पेनिट्रेशन का। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो आपका पेनिट्रेट जो है वो प्रॉब्लम आपकी मोस्टली आती है किसी भी अनगाइडेड मीडिया के अंदर। बट रेडियो वेव हमारा एक वो ट्रांसमिशन मीडिया है which can cross the which have no penetration problem, and the frequency range of radio wave is from 3 kilohertz to 3 gigahertz. It can be used for short distance meter like walkie-talkies we can use. It can travel long distance and can penetrate building easily. यानी कि जब हम जो हमारी अनगाइडेड मीडिया होता है, जो हमारा वायरलेस मीडिया होता है, उसमें हमारा पेनिट्रेशन प्रॉब्लम मींस वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को आपके पास नहीं कर सकता। बट रेडियो वेव इज अ काइंड ऑफ गाइडेड मीडिया व्हिच कैन क्रॉस एनी हार्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम। दिस इज द मीडिया व्हिच कैन बी यूज्ड इन इंडोर एंड आउटडोर इन आवर कॉर्डलेस फोन्स, AM and FM radios broadcast, and we can also use it in garage door openers, etc. Transmitter and receiver antennas do not need to be fixed. अब रिसीवर और ट्रांसमीटर का एंटीना का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारा एक माइक्रोवेव आएगा, और माइक्रोवेव आपका वो ट्रांसमिशन मीडिया है which have the penetration problem. Means this is the kind of media which cannot cross any hard object. So there we have the requirement to align the antennas of both the towers so they can get the proper signal quality. But in radio waves this is not the problem. In radio wave data can be omnidirectional. It can cover the radius. Then it is also cheaper than laying cable and fibers. Next we have microwave. Microwave have a frequency range of 300 megahertz to 300 gigahertz. It has some overlapping problem with radio waves as microwave travel in a straight line and cannot penetrate any solid object. This is the main difference between radio wave and microwave. Means a microwave can travel in straight line and it have also the penetration problem. But in radio wave this problem is not there. Distance between two microwave depend the signal quality. Then we have also the sending and receiving antenna have to be aligned with each other. अब क्योंकि जो माइक्रोवेव है इसमें जो सिग्नल है वो क्या हमारा ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन, सो वी हैव द रिक्वायरमेंट टू अलाइन द एंटीनास ऑफ बोथ द टावर सो दैट दे कैन गेट द बेटर क्वालिटी ऑफ सिग्नल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेडियो वेव होता है उसके अंदर आपको एंटीना को अलाइन करने की जरूरत नहीं है, बट इन माइक्रोवेव हमने एंटीना को बिल्कुल स्ट्रेट लेना पड़ेगा। यदि हमारा स्ट्रेट लाइन में एंटीना नहीं है, एंटीना बिल्कुल सीध में नहीं है, then we are not able to get the proper quality of signal. Then we have satellite link. Satellite link, which is a kind of line of sight transmission, which can be used to transmit signal throughout the world. यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि आपने कहीं पे भी सिग्नल अपने सेंड करने हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपने सैटेलाइट को। When the frequency is greater than, means we can say that if the frequency is greater than 3 gigahertz, then it is known as microwave. सैटेलाइट है क्या? सैटेलाइट हमारा वास्तव में एक स्पेशल टाइप का माइक्रो ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो हमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो आपने टेक्स्ट करना है, आपने वॉइस डाटा भेजना है, आपने वीडियोस को सेंड करना है, आपने कोई ईमेल या हमने कोई भी इंटरनेट की एप्लीकेशंस को यदि एक्सेस करना है, देन दिस इज द
best one, media better one. In satellite communication, Earth station has a satellite dish which function as an antenna to transmit and receive data from satellite. यानी कि यहाँ पे जो हमारी ये फिक्स डिश होती है ग्राउंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ये हमारे सिग्नल सेट करती है आपके सैटेलाइट को, जिसको हम बोलते हैं अपलिंक। फिर जो हमारा सैटेलाइट होता है वो हमारे डिश को दोबारा सिग्नल को वापस भेजेगा, जिसको बोलेंगे हम डाउन लिंक। आप कह सकते हो इसको अपलोड या डाउन। जैसे आप लोग अभी जो सिग्नल आपको जो व्यू आप देख पा रहे हैं, अपने टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है सैटेलाइट के ऊपर, और फिर वहां से आपके पास आपके टीवी के जो प्रोग्राम है वो सैटेलाइट से दोबारा फिर आपके टीवी पे डिस्प्ले हो रहा है, आप उसको व्यू कर पा रहे हैं। Then we have infrared. इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड हमारा एक डिवाइस है जो हमारा ब्लूटूथ की तरह ही काम करता है। इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारा 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज का होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो रेड लाइट हमारी होती है दैट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज 400 टेराहर्ट्ज टू 484 टेराहर्ट्ज इन दिस स्पेक्ट्रम। दीज वेव्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। यानी कि जो हमारा इंफ्रारेड होता है उसमें हमारा जो रेंज कम्युनिकेशन है वो हमारा छोटा होगा, कम होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर की डिस्टेंस तक ये हमारा जो इंफ्रारेड है वो आपके डाटा को सेंड कर सकता है। जैसे आप लोग देखते हो कि आपके जो टीवी का रिमोट होता है, टीवी का रिमोट आपका इंफ्रारेड के बेस पे ही काम करता है। इसमें सिग्नल जो होता है वो हमारा वन वे होता है। आपका जो कोर्डलेस माउस होता है, आपका जो कोर्डलेस कीबोर्ड होगा, या आपका कोई भी होम एंटरटेनमेंट के लिए जो आपका रिमोट है, किसी भी जैसे वो आपकी गेम का है चाहे आपको टीवी का है, वो आपका यूज करता है इंफ्रारेड को। अब यहाँ पे जैसे इसका नुकसान अभी हमारा कम डिस्टेंस के लिए सिर्फ यूज होता है और वन वे होता है, तो इसका एक फायदा भी है, ये एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि डू नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट। सो इफ वी हैव टू set of same companies or same product, then we face a problem, but due to the penetration problem we cannot the network in other room, or we can say that infrared system in one room of a building will not interfere with a similar type in adjacent room. You cannot control TV in other room with the remote in your hand। तो इनके सपोज करो कि आपके पास 2 टीवी है और दोनों एक कंपनी के हैं और दोनों हमारे अलग अलग रूम में लगे हुए हैं। इफ यू हैव इंफ्रारेड और यू हैव द रिमोट, क्योंकि रिमोट क्या करेगा, इंफ्रारेड का यूज करेगा। अब इंफ्रारेड हमारा क्योंकि दूसरे रूम में टीवी लगा हुआ है, तो जब आप अपने रिमोट को यूज करोगे तो वो सिर्फ आपके रूम में ही काम करेगा, दूसरे रूम में वो काम नहीं करेगा, जिससे आपका ये एडवांटेज यहाँ पे है। मींस इट इज ए सिक्योर मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा, इट इज ए चीप मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और इसके साथ साथ जो हमारे डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि इट कैन कवर ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड इट हैव आल्सो द पेनिट्रेशन प्रॉब्लम, सो इट कैन नॉट क्रॉस द वॉल और इट इज अफेक्टेड बाय डिस्टेंस, नॉइज एंड हीट। इसके बाद हमारा जो है वो आएगा वायरलेस टेक्नोलॉजी। जैसे नाम से स्पष्ट है, wireless technology means such kind of technology where a communication can be made without the physical connection, process of sending information through invisible waves in the air। देखिए हवा के अंदर यदि हम कोई भी सिग्नल को सेंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी है क्या? वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा एक प्रकार का ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में। सपोज करो कि मैंने अपने एक सिस्टम से लेके और दूसरे नोड के अंदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कोई डाटा सेंड किया है, और वो जो डाटा मैंने सेंड किया उनके बीच में मैंने कोई फिजिकल कनेक्शन क्रिएट नहीं किया, बल्कि मेरे वाईफाई कनेक्शन के थ्रू या हमारा वो जो वायरलेस मीडिया है उसके थ्रू मैंने डाटा सेंड किया है, तो उसको हम बोलेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, एक तो आपके पास वाईफाई हो सकता है, वाईफाई जिसको हम वायरलेस फिडेलिटी भी कह सकते हैं। ये हमारा एक प्रकार का कम्युनिकेशन है जो आपका किसी भी 2 सिस्टमों के बीच में होगा विदाउट एनी वायर। इट इज नॉट ए सिक्योर्ड मीडिया ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा
यूजर मस्ट यूज प्राइवेसी मेथड सच एज यूजिंग पासवर्ड एंड द कनेक्शन। यानी कि जब हम अपने किसी भी डाटा को वायरलेसली सेंड करते हैं तो वो हमारा सिक्योर नहीं होता, कोई भी बीच में इसको एक्सेस कर सकता है। बट एक यूजर जो है अपने उस डाटा को सिक्योर कर सकता है बाय यूजिंग अ पासवर्ड ऑन द सिस्टम और ऑन द ट्रांसमिशन। The connection security enabled so that it does not become susceptible to hackers। ये जो हमारा हैकर है वो उसको आपका सक्सेस नहीं कर सके, उसको एक्सेस ना कर सके। और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू वाईफाई, a user must have a broadband connection, a wireless router and a laptop or a desktop। यानी कि यदि हमारे किसी भी यूजर ने कोई भी डाटा आपका ट्रांसमिट करना है, कैसे, किस मोड से, वाईफाई मोड से, तो उसके पास एक तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, एक उसके पास वायरलेस राउटर होना चाहिए और उसका अपना खुद का लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा जिसके माध्यम से वो डाटा को सेंड कर सकता है। देन वी हैव WiMAX। दिस इज द मोस्ट कॉमन मीडियम व्हिच कैन बी यूज्ड इन मॉडर्न डेज। आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होने वाला हमारा डिवाइस है। और ये हमारा क्या है, ये हमारी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ और माइक्रोवेव एक्सेस है। ये आपका WiMAX क्या होता है, ये आपका एक वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है कितने एरिया तक, 30 माइल्स तक। डाटा ट्रांसमिशन हमारा इसके अंदर जो होगा वो विदाउट वायर होगा और जो हमारा रेट ऑफ ट्रांसफर होगा इट इज फ्रॉम 30 to 40 megabit per second and sometimes it also provide 1 gigabit per second for fixed session। WiMAX हमारा क्या है, इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड IEEE 802.1.6 टेक्नोलॉजी that provide user with access to high speed voice data and internet connectivity, but it require a tower which is known as a base station to communicate। यानी कि यदि आपने WiMAX यूज करना है, WiMAX अपना स्टेशन बनाना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक टावर। और उसके अंदर जो हमारा है माइक्रोवेव लिंक जो है वो एक कनेक्शन आपको क्रिएट करेगा जो आपको इंटरनेट की इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। और जो इंटरनेट फैसिलिटी आपकी होगी वो एंड यूजर तक होगी थ्रू ए माइक्रो लिंक। देन वी हैव लेजर टेक्नोलॉजी। जैसे हमने अभी पढ़ा आपका इंफ्रारेड के बारे में, तो वैसे ही फिर हमारे पास होता है लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर का मतलब क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम व्हिच रिक्वायर direct line of sight। It provides point to point transmission between point located at short distance such as building। Similar to microwave, a laser is unidirectional। यहाँ पे ध्यान ही देना है कि जो आपका लेजर टेक्नोलॉजी है वो आपकी क्या है, वो आपकी यूनिडायरेक्शनल है बट इट इज मच फास्टर। Laser require transmitter and photosensitive receiver for transmission। यानी कि जो हमारा लेजर होता है उसके लिए बेसिकली हमने दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, दो आपके डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। एक आपका ट्रांसमीटर होगा और एक आपका फोटो सेंसिटिव रिसीवर होगा। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, लेजर ट्रांसमिशन इज दैट इट इज बैडली अफेक्टेड बाय वेदर। जब हमारा मौसम खराब हो जाता है, वेदर हमारा वहाँ में यदि अफेक्ट है तो उस टाइम हमारा जो लेजर टेक्नोलॉजी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं करती। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज करते हैं। और जब हमने टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था पैन के बारे में, और वहाँ पे हमने अपने ब्लूटूथ के बारे में पढ़ा था कि इट कैन कवर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर ऑफ एरिया एंड कैन बी यूज्ड वायरलेसली टू सेंड द डाटा टू एनी डिवाइस within the range of 10 meter। Then we have such type of questions। अब यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि जो हमने लास्ट सेशन किया था उस लास्ट सेशन में हमें क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, तो आज हमारे क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बेस पे हमने लिया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो आपका 4 मार्क्स का होगा और हर बार ये क्वेश्चन आपका आता है। इसमें आपकी सिचुएशन दी गई है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि जो जोनाथन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स सेंटर इन अमृतसर विद 4 स्पेशलाइज्ड। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन है
कि एक जोनाथन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है जो आपका एक नेटवर्क अपना इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, और इस्टेब्लिश के टाइम में क्या है, वो आपसे पूछ रहा है कि उसके हमारे 4 सेंटर है, कहाँ पे, अमृतसर में, विद 4 स्पेशलाइज्ड ब्लॉक फॉर मेडिसिन। उनके मेडिसिन के लिए इसके लिए 4 ब्लॉक है, और 4 ब्लॉक जो आपके दिए गए हैं उन ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस दिया गया है, और आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर बताए गए हैं कि कितने कंप्यूटर वहां पे है और कितना उनका डिस्टेंस है। सपोज करो कि उसकी 4 जो ब्लॉक्स है उसमें एक मैनेजमेंट है, एक मेडिसिन है, एक लॉ है और एक एडमिन है। यदि हम बात करें यहाँ पे कि जो आपका एडमिन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक के अंदर जो आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो आपके 150 है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे तो ये डायग्राम अपना तैयार कर रहे हैं एक रफली कि हमारे यहाँ पे जो एडमिन ब्लॉक है उसके अंदर 150 कंप्यूटर है, मैनेजमेंट ब्लॉक के अंदर आपके 70 कंप्यूटर है, मेडिसिन ब्लॉक के अंदर आपके 70 कंप्यूटर है, और जो लॉ ब्लॉक है उसके अंदर आपके 50 कंप्यूटर। ये आपकी पहली सिचुएशन दी गई है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जो हमारा एडमिन ब्लॉक है वहां से जो आपका मैनेजमेंट ब्लॉक है, यानी कि यहां से यहां तक का जो आपका गैप है ये वाला, ये आपका है 60 मीटर। यदि हम बात करें हमारे एडमिन से लेके मेडिसिन ब्लॉक, ये वाला जो गैप है ये आपका है 40 मीटर का। इसके बाद आपका दिया गया कि जो एडमिन ब्लॉक है वहां से जो लॉ ब्लॉक है, मींस यहां से लेके और यहां तक का जो स्पेस है वो आपका है 60 मीटर का। इसके बाद जो मैनेजमेंट ब्लॉक है, मैनेजमेंट ब्लॉक से लेके और जो मेडिसिन ब्लॉक है, मींस मैनेजमेंट ब्लॉक से मेडिसिन जो ब्लॉक है इनके बीच का जो गैप है आपका, मैनेजमेंट ब्लॉक टू मेडिसिन ब्लॉक, वो आपका 50 मीटर है। इसके बाद जो मैनेजमेंट ब्लॉक है वहां से जो लॉ ब्लॉक है इनका जो गैप है वो आपका है 110 मीटर, और लॉ ब्लॉक जो आपका है वहां से जो मेडिसिन ब्लॉक है इनका गैप है आपका 40 मीटर। यानी कि ये आपका डायग्राम एक दिया गया है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर आपके बताए गए हैं और उसके बाद आपका डिस्टेंस उन बिल्डिंग्स के बीच में दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन टू गेट एफिशिएंट कनेक्टिविटी। यानी कि ये पूछ रहे कि आपने एक सर्वर लगाना है तो सर्वर हम किस स्थान पे लगाएं कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो एफिशिएंट हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो आपका सर्वर होता है वो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम रखते हैं जहाँ पे आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर मैक्सिमम होते हैं। और यदि हम यहाँ पे देखें तो जो एडमिन ब्लॉक आपका है उसके अंदर आपके सबसे ज्यादा कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो इसलिए आपका जो सर्वर होगा वो प्लेस होगा आपके एडमिन ब्लॉक पे। कई बार क्या होता है, हम बहुत रेयर चांस होता है हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर की बजाय कई बार देख लेते हैं कि जो डिस्टेंस है, यानी कि कौन सी वो बिल्डिंग है जिससे सभी का डिस्टेंस मिनिमम पड़ रहा है। यदि आपका ऐसा होता है तो कई बार हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर देते हैं, फिर हम देख लेते हैं जहां से डिस्टेंस कम है वहां पे भी हम अपने सर्वर को प्लेस कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होंगे वहीं पे हम अपने सर्वर को प्लेस करेंगे। इसके बाद सेकंड आपका है सजेस्ट द डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दीज बिल्डिंग for connecting computer installed within the building out of the following। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया उन्होंने कि भाई आपने एक वो डिवाइस सजेस्ट करना है जो आपका इंस्टॉल होगा किसके बीच में, इन बिल्डिंग्स के बीच में, और कनेक्टिंग कंप्यूटर। अब कनेक्टिंग कंप्यूटर के लिए हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो जब हमने क्वेश्चंस पढ़े थे तो वहां पे आपके सामने हमने चारों क्वेश्चंस को पढ़ा था। सबसे पहले हमारे पास जैसे मॉडम है, मॉडम आपका एक वो डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। इस मॉडम आपका वो डिवाइस होगा सिर्फ जो आपके सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, इसलिए ये आपका नहीं वहां पे लगेगा। इसके बाद है स्विच। स्विच आपका क्या है, स्विच आपका वो डिवाइस होता है जो हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेगा। दो डिवाइस आपके यहाँ पे हो सकते हैं, एक तो आपका होता है हब और एक होता है आपका स्विच। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि हब जो है वो जिस यदि किसी एक नोड से डाटा लेता है तो वो सभी नोड को, जितने नोड से जुड़े हुए हैं सभी को डाटा प्रोवाइड करता है। स्विच क्या है, स्विच हमारा एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है, एक इंटेलिजेंट हब होता है
जो सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड को ही डाटा प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे क्या है, स्विच हमारा एक वो डिवाइस होगा जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आया है गेटवे। गेटवे आपका वो डिवाइस है जो हमारे डिस्क सिमिलर टाइप के नेटवर्क को जोड़ेगा। ऑलरेडी हमने इसको लास्ट लेसन में पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सजेस्ट बाय ड्राइंग द बेस्ट टेबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ द ब्लॉक्स हैविंग सर्वर विद ऑल द अदर ब्लॉक्स। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे यहाँ पे सभी चार ब्लॉक है, तो ये कह रहा है कि हमने जो केबल लेआउट है वो बताना है। और केबल लेआउट क्या है, केबल लेआउट के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, जहां पे आपका सर्वर है प्लेस, उस सर्वर से आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। और हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे सबसे पहले देखना होता है कि जो केबल है वो हमारी मिनिमम यूज। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो जो एडमिन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक से जो मैनेजमेंट ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक है, इसका जो डिस्टेंस है वो आपका है 60 मीटर। और यदि हम एडमिन से ही देखें तो जो मेडिसिन ब्लॉक है इसका जो आपका है वो है 40 मीटर का डिस्टेंस है। और इधर से यदि हम एडमिन से ही ला ब्लॉक को देखें तो ये हमारा 60 मीटर का डिस्टेंस। तो ये हमारा इस प्रकार का लेआउट जो है वो तैयार हो जाएगा, यानी कि एडमिन ब्लॉक से हमने तीनों को जोड़ दिया। तो ये जो लेआउट बनेगा, दिस इज द काइंड ऑफ लेआउट व्हिच कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक्स। देन आगे क्वेश्चन आपका है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम फॉर एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है उसमें हमारे पास जैसे गाइडेड है, गाइडेड हमारा 3 प्रकार का आया था। एक आपका ट्विस्टेड पेयर केबल था, एक आपका कोएक्सियल केबल था, और एक आपका फाइबर ऑप्टिक। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है it can cover a distance up to 100 meter. Coaxial cable can cover a distance from 185 meter to 500 meter। और फाइबर के अंदर हमारा कोई डिस्टेंस की बाउंड्री नहीं होती। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारे जितने भी कनेक्शन हमने क्रिएट किए हैं, जितने भी हमने कनेक्टिविटी दी है, उनका डिस्टेंस हमारा 100 मीटर से कम है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपने बताना है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम फॉर एफिशिएंसी कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एवरी बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क केबल। में आपके यहाँ पे केबल दी गई है, कोएक्सियल केबल है, अथरनेट केबल है, सिंगल पेयर टेलीफोन केबल। अब यहाँ पे अथरनेट केबल है, अथरनेट केबल को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अथरनेट केबल क्या होती है वो अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। यानी कि अथरनेट हमारा एक वो मीडियम होता है जिसको हम अपने नेटवर्क के अंदर, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अथरनेट, जिसके अंदर हम अपने नेटवर्किंग के अंदर यूज करते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जो आपका अथरनेट केबल होती है उसके अंदर जो डाटा हमारा ट्रांसमिट होता है, सपोज करो कि मेरे पास ये केबल है और इस केबल पे यहाँ नोड लगे हुए हैं, डिफरेंट नोड मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ से कोई भी नोड एक सेंस डाटा करेगा, यदि डाटा को सेंस करेगा तो वो जो डाटा है वो बहुत डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, जिससे हमारा जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट होता है देन कंपेयर टू अदर टाइप टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो ये था कि राइट द एक्सपेंडेड नेम्स फॉर द फॉलोइंग एब्रिविएटेड टर्म्स यूज्ड इन नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। कि आपका जो नेटवर्किंग है उसके अंदर आपने जो शॉर्ट फॉर्म आपकी आई है उनको आपने एब्रिविएट करना है। अब सबसे पहले आपका है MBPS, इसको इजीली बता दोगे, मेगाबाइट पर सेकंड। अब ध्यान यहाँ पे रखना है, एक तो होता है हमारा MBPS मींस स्मॉल b आपका आता है और एक आपका कैपिटल B आता है। यदि कैपिटल B यहाँ पे आया है इट मींस बाइट, यदि स्मॉल b यहाँ पे है देन इट रिप्रेजेंट बिट, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड। देन वी हैव व्हेन, जब हमने टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ा था तो वहां पे हमारे पास एक पैन आया था, एक लैन आया था, एक मैन आया था और एक वैन आया था। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, and also we have MAN metropolitan area network, but here we have WAN stand for wide area network. Then we have CDMA। CDMA हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपका आगे आएगा, बट ये होता है हमारा कोड डिवीजन
मल्टीपल एक्सेस। आगे हम अभी इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा WLL, अभी हमने पढ़ा था इसको, जो आपका पहले आया था वायरलेस। इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे लिखे जा सकते हैं, और हमने यहाँ पे अभी जस्ट डिस्कस किया था कि राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर। उसके पहले आपके पास है मॉडम। मॉडम इज ए काइंड ऑफ device which can be used to convert the analog signal into digital and digital signal into analog. मॉडम आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है मो और एक होता है डैन। मो स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डैन डीमॉड्यूलेटर, मींस एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। देन वी हैव स्विच। अभी हमने आपका डिस्कस किया था स्विच के बारे में। स्विच हमारा एक वो डिवाइस है जो सिर्फ एक डेडिकेटेड नोड को डाटा प्रोवाइड करेगा और ये काम करेगा आपका मैक एड्रेस। नेक्स्ट वी हैव ए क्वेश्चन, राइट टू वेज यूज्ड टू मेक श्योर दैट द डाटा इज सिक्योर एंड इज अवेलेबल ओनली टू द इंटेंडेड एंड ऑथराइज्ड पर्सन इन ए नेटवर्क। अब यहाँ पे कह रहा है कि राइट टू वेज यूज्ड टू मेक श्योर दैट द डाटा इज सिक्योर एंड इज अवेलेबल ओनली टू द इंटेंडेड एंड ऑथराइज्ड नोड। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले एक तो आपका आ जाता है स्विच, जिसके अंदर आप जो डाटा है वो सिर्फ आपका इंटेंडेड नोड को ही जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड TCP/IP। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट द पर्पस ऑफ TCP/IP इन कम्युनिकेशन ऑफ डाटा ऑन ए नेटवर्क। When we send the data on a network, on a channel, suppose we have a node A and we have node B. When a data is sent to on a communication channel, it is divided into sub packets, and every packet must have a source address and destination address. जो हमारा TCP है, TCP सबसे पहले क्या करेगा, इन एड्रेस को, जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस है, उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद उस पाथ के ऊपर उसको डाल देगा। बट IP क्या है, IP उस डाटा को उस चैनल के ऊपर सेंड करेगा एज पर द एड्रेस एंड देन प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद हमारा एक्सपेंड द फॉलोइंग फ्रॉम मैक। मैक क्या होता है हमारा, इट इज स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, which is 6 byte of address and which has the octet of 2 byte each. Sorry, 1 byte each, and mostly represented in hexadecimal code. Then we have another question where we have discussed. Now we have network topology. In a network topology, we will discuss about the method in which the systems are connected, or we can say that a network topology is a kind of method which is used to connect the nodes into the network. सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो नाम से स्पष्ट है हमारा कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। इट इज kind of method or topology in which each node is connected to other nodes on either side of it. अब यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा ये एक नोड है, ये नोड इस साइड से जुड़ा है और इस साइड से भी आपका कनेक्ट है। इन्हीं की जो रिंग टोपोलॉजी है, इन रिंग टोपोलॉजी every node is connected in two sides. It shows the line configuration in which each node is connected to one predecessor node and one successor node. ये हमारा predecessor node है और ये हमारा successor node होगा. Signal is transmitted only one direction along the entire ring. अब यहाँ पे सपोज करो कि मेरे को इस नोड, ये जो नोड है, मान लो ये नोड मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4. अब नोड 1 को सपोज करो डाटा चाहिए नोड 2 से, तो ये डाटा हमारा वापस नहीं आएगा, बल्कि ये डाटा जो है हमारा ऐसे घूम के फिर इसके ऊपर आपका आएगा.
यानी कि जो रिंग टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो डाटा है वो हमारा वन डायरेक्शन में आपका मूव करेगा ओनली। When the data is transmitted from one node to its recipient node, then the intermediate node regenerates the signal and pass the signal to the destined node। यानी कि जब हमारा डाटा यहाँ पे जाएगा, जब यहाँ से डाटा यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से डाटा यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ डाटा पहुँचना है, तो यहाँ पे क्योंकि जब डाटा जाएगा तो हमारा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल क्वालिटी है वो आपकी लो हो जाती है। तो उस सिग्नल क्वालिटी को रीजनरेट करने का जो काम है वो आपका करेगा नोड। व्हेन वी हैव बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी हमारी वो एक टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारा एक सिंगल कम्युनिकेशन मीडिया होगा और सिंगल कम्युनिकेशन मीडिया के ऊपर ही आपके सभी नोड लगे होंगे। ये जो हमारी सिंगल केबल होगी इसको आपका बैकबोन कहा जाएगा। अब मोस्टली क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि आपके पास एक बस टोपोलॉजी है और एक सपोज करो फिर रिंग टोपोलॉजी आ गई या कोई और टोपोलॉजी आ गई, उनके बीच में मोस्टली डिफरेंस आपका आएगा। तो वो आपने बताना है कि जैसे बस टोपोलॉजी है, भी बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सिंगल हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होगा, एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होगा जिसके ऊपर सभी नोड जुड़े होंगे और वही हमारा एक बैकबोन का काम करेगी। इस दोनों के एंड पे जो हमारी सिंगल केबल होगी, तो यहाँ पे जो एंड है, एंड पे हमारा एक डिवाइस लगा होगा जो हमारे सिग्नल को कंट्रोल करेगा या एंड करेगा, जिसको हम अभी टर्मिनेटर आप कह सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जो आपका बस टोपोलॉजी है, इट सेंड द सिग्नल टू द बैकबोन, यानी कि सारे सिग्नल जो है वो इस तरह पे जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे सिग्नल है वो आपके कंटिन्यू मूव हो रहे हैं इस बैकबोन के ऊपर। इसका एडवांटेज क्या है? इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल, it requires less cable length and hence it is not so cost effective. Failure of a node does not affect the network। आप सपोज करो कि इसमें से हमारा ये एक कनेक्शन जो है वो हमारा फॉल्ट में आ गया, तो इसके फॉल्ट में आने के बाद भी हमारा नेटवर्क जो है वो काम करता रहेगा। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यहाँ पे है कि यदि हमारे यहाँ पे ये नोड में कोई प्रॉब्लम आपका आया है, देन हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो आपका काम करना बंद कर देगा। इसके बाद we have also a problem that fault diagnosis is difficult at a time only one node can transmit data। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बस टोपोलॉजी का कि इसके अंदर जो डाटा है एक बार में सिर्फ एक नोड ही डाटा आपका ट्रांसमिट कर सकता है। इसके बाद आपका आता है मैश टोपोलॉजी। अब जैसे आप नाम देखोगे तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका नोड है वो उसके अंदर सभी नोड आपके आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि एक नोड ये था, ये नोड इससे जुड़ा हुआ है, ये नोड आपका इससे जुड़ा हुआ है, ये नोड इससे जुड़ा हुआ है और ये नोड इससे भी जुड़ा हुआ है। यानी कि एवरी नोड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और जो आपका नोड आपस में जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क थ्रू ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट। अब हमने लास्ट सेशन में एक पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट, और पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, एक नोड आपका यहाँ लगा हुआ है और एक नोड आपका इस साइड लगा हुआ है। अब इसके अंदर ये नोड इसको डाटा देगा और ये नोड इसको डाटा देगा। वही काम हमारा मैश टोपोलॉजी के अंदर है कि जो डाटा होता है वो हमारा डेडिकेटेड कनेक्शन वहां पे होगा और जिस नोड का रिसीवर कनेक्शन है वही डाटा हमारा डाटा सेंड करेगा। मींस यहाँ पे आपका सेंडर होगा और एक आपका रिसीवर होगा। Then it means that link only carries data for the two connected device only. Let's say we have n devices in the network, then we must have be connected with n minus 1 devices of the network. Number of link in a mesh topology of n network device should be n into n minus 1 divided by 2। सपोज करो कि मेरे यहाँ पे 5 नोड लगे हुए हैं, 5 नोड मेरे ये लगे हैं, तो 5 into 5 minus 1 divided by 2, तो ये मेरा हो जाएगा 10 कनेक्शन मेरे यहाँ पे क्रिएट होंगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर हमारा जो फॉल्ट डायग्नोज करना है वो आपका इजी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ केबल्स जब हमारे नेटवर्क का साइज बड़ा हो जाएगा
तो उस नेटवर्क के बड़े साइज के अंदर इट इज नॉट इजी टू रिकवर द फॉल्ट। देन अगेन हियर ट्री टोपोलॉजी में यदि आप देखोगे तो ट्री टोपोलॉजी आपकी एक वो टोपोलॉजी होती है जिसमें जो डिवाइसेस है दे आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब which is called an active hub, and some of the devices are connected to the secondary hub which may be an active hub or passive hub। अब एक्टिव हब क्या होता है, पैसिव हब हमारा क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा है एक स्विच होता है और एक हब होता है, तो वैसे ही हमारा एक एक्टिव और एक आपका पैसिव आप कह सकते हो। एक्टिव हब कंटेन द रिपीटर दैट रीजनरेट द सिग्नल व्हेन इट बिकम वीकर विद longer distance। एक पैसिव हब सिमिलरली प्रोवाइड ए कनेक्शन बिटवीन ऑल अदर कनेक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे ही आपको समझ में आ गया कि हमारे पास एक पैसिव हब होगी और एक आपकी एक्टिव हब होगी। एक्टिव हब के अंदर आपका रिपीटर लगा होगा जो हमारी सिग्नल क्वालिटी को रीजनरेट करेगा, जिससे हमारे जो सिग्नल है वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं। लास्ट में है स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी each communicating device is connected to a central controller which is called hub। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डिवाइस मेरा ये है, एक डिवाइस ये है, ये डिवाइस है और ये डिवाइस, ये सभी डिवाइस आपके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से जुड़े हुए हैं, एक नोड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलेंगे आपका स्विच या हब। और यहाँ पे आपका एक सर्वर होगा जो हमारे डाटा को हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और ये जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है दिस इज नोन एज सर्वर। और जो नोड आपके सर्विसेज को ले रहे हैं विच आर गेटिंग द सर्विसेज दे आर नोन एज क्लाइंट। यानी कि ये हमारे क्लाइंट सर्वर क्लाइंट सर्वर। अथरनेट जो आपका है, अभी हमने बात करी थी अथरनेट के बारे में। अथरनेट हमारा एक वो नेटवर्किंग टोपोलॉजी आप कह सकते हो, या हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नेटवर्किंग का, जिसके अंदर डाटा हमारा बोथ साइड में ट्रैवल करता है। अब यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो अथरनेट क्या है, इट इज ए वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि लैन के अंदर हमारा जो नेटवर्क होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, उनको कनेक्ट करने के काम आएगा। बेसिक आइडिया ऑफ इट्स डिजाइन इज दैट मल्टीपल कंप्यूटर हैव एक्सेस टू इट एंड कैन सेंड डाटा एट एनी टाइम। यानी कि डाटा हमारा कोई भी सिस्टम किसी टाइम भी सेंड कर सकता है। अब लेकिन क्या होगा कि एक बार में इस सिस्टम में हमारा डाटा सेंड कर दिया, ठीक है, चला गया, इसके बाद इस सिस्टम में डाटा सेंड कर दिया, फिर भी चला जाएगा। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब इस सिस्टम ने डाटा सेंड कर दिया और इस सिस्टम ने डाटा सेंड कर दिया, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे दोनों स्ट्राइक करेंगे। जब वो दोनों सिस्टम स्ट्राइक करते हैं तो उस इसको बोलते हैं हम कोलिजन। कोलिजन आपका यहाँ पे होगा, और जब हमारे डाटा को वो सेंड कर पा रहे हैं, इट इज नोन एज CSMA which is also known as carrier sense multiple access with CD। CD stand for collision detection। यानी कि जो हमारे यहाँ पे जब दोनों सिस्टम डाटा सेंड कर देंगे तो यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेंगे तो उसको बोलेंगे कोलिजन। और उस कोलिजन को रिमूव करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, मोस्टली जो टोकन रिंग हम यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोलिजन डिटेक्शन। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी कि जो एक्सेस यहाँ पे होगी वो आपकी मल्टीपल होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस के बारे में, बट उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता
स्वयं चुने। अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं बने, हम सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि एक सिचुएशन आपकी यहाँ पे आई है, और सिचुएशन में क्या है कि टू डॉक्टर हैव कनेक्टेड देयर मोबाइल फोन टू ट्रांसफर ए पिक्चर फाइल ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए स्किन डिजीज. What type of network is formed and which communication media out of coaxial cable, optical fiber, Bluetooth, satellite link should be used to transfer the file? मीन्स यहाँ पे जो सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि आपके दो डॉक्टर है और दो डॉक्टर एक फाइल को शेयर करना चाह रहे हैं, कैसे? थ्रू मोबाइल फोन. तो ये कह रहे कि हमारे कौन सा नेटवर्क हमारा वहाँ पे बनेगा. तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमने आपको जो टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में बताया था, तो वहाँ पे हमारे पास पैन, मैन और वैन के बारे में डिस्कस किया. अब क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है वो ये कि मोबाइल फोन से वो अपनी पिक्चर को ट्रांसफर कर रहे हैं. अब मोबाइल फोन से ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो डिस्टेंस है वो आपका बहुत कम है. अब यदि कम है तो कम डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं पैन को, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हमारा जो डिस्टेंस है वो आपका 10 मीटर तक का हो सकता है. अब यदि हमने पैन किया है तो पैन के अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया यूज होता है, आप सभी जानते हैं कि वो हमारा होता है ब्लूटूथ. तो आप यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं कि देयर इज a network which is PAN and they can use Bluetooth as a transfer medium. Then next question आपका है, state reason why star topology require more cable length than bus topology. यानी कि यहाँ पे दो टोपोलॉजी आपके सामने है, एक आपकी टोपोलॉजी है स्टार और एक आपकी है बस टोपोलॉजी. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि जो हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो आपके डिवाइसेस है
वो आपके जो कनेक्ट होंगे वो डिफरेंट मशीन से होंगे। और यदि आप देखोगे बस टोपोलॉजी के अंदर, जो डिवाइसेस आपके सारे हैं वो आपके एक सिंगल केबल के ऊपर है। अब सिंगल केबल के ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि जो केबल लेंथ है बस टोपोलॉजी के अंदर वो आपकी कम होगी देन कंपेयर टू रिंग टोपोलॉजी। सेकंड, यदि हम यहीं पे देखें तो अब देखा कि स्टेट रीजन वाई स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर मोर केबल, क्योंकि हमारा बस टोपोलॉजी जो होता है, बस टोपोलॉजी यूज ए सिंगल केबल, ऑन द अदर हैंड स्टार टोपोलॉजी यूज डिफरेंट केबल फॉर डिफरेंट नोड्स। सो स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर मोर केबल देन कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए स्कूल विद 20 स्टैंड अलोन कंप्यूटर इज कंसिडरिंग नेटवर्किंग देम टुगेदर एंड एडिंग ए सर्वर। टू एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस, यानी कि आपका एक स्कूल है उसके अंदर 20 कंप्यूटर आपके लगे हुए हैं, तो वो आपका नेटवर्किंग करना चाह रहा है। अब नेटवर्किंग यदि वो करता है और एक आपका सर्वर यहाँ पे ऐड करता है तो उसके कोई भी 2 एडवांटेज आपने बताने। अब 2 एडवांटेज यदि हम बात करें यहाँ पे तो वी हैव सो मेनी एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि दे विल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ शेयरिंग द डाटा, डाटा को वो शेयर आपका कर सकते हैं। और उसके बाद यदि सेकंड हम देखें तो हमारा जो टाइम सेविंग है वो वहाँ पे होगी। और दे हैव आल्सो द एडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन और इंक्रीजमेंट ऑफ स्टोरेज, यानी कि जो स्टोरेज है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन लैन एंड वैन। लैन और वैन जो आपका है, लोकल एरिया नेटवर्क और जो वाइड एरिया नेटवर्क है, उन दोनों में डिस्टिंग्विश आपने करना है, डिफरेंस आपने करना है। लैन आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा जो कुछ मीटर तक या हमारे 10 किलोमीटर के एरिया में हो सकता है, बट जो वैन होता है उसमें आपका कोई डिस्टेंस का बाउंड्री नहीं होती, वो आपका पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में हो सकता है। दूसरा, जो लैन है, लैन के अंदर जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, जबकि वैन में स्पीड आपकी कम होगी। आगे हमारा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडेम इन नेटवर्क। हमने पीछे अभी जस्ट पढ़ा था कि मॉडेम जो होता है हमारा, उसका हमारा क्या पर्पस होता है। A modem is a kind of device which can be used to convert the signal from analog to digital and digital to analog. Then we have the question, write one example of IP address. IP address हमने लास्ट जो सेशन किया था, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारा IP एड्रेस होता है, it is a kind of address which have the digit from 0 to 255 and have 4 octet, 4 ऑक्टेट उसके होंगे, और जो हमारा वैल्यूज है डेसिमल वैल्यू आपकी कंटेन होगी, और वो हमारी 0 से 255 तक कोई वैल्यू आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लेके विच इज लेस देन 255 एंड ग्रेटर देन 0, आप कोई भी एड्रेस अपना क्रिएट कर सकते हो। अब यदि आपकी कोई भी वैल्यू 255 से कम है, 255 या 250 से कम है और 0 से यदि ऊपर है, तो वो जो हमारा होगा वो आपका कोई भी एक आईपी एड्रेस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डिफाइन डोमेन नेम लिमिट। देन अगेन वी हैव द क्वेश्चंस हियर, वी हैव ए केस स्टडी अबाउट ए डिपार्टमेंट, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उसी कंसर्न आपका है। इसमें भी वही सिचुएशन दी गई है कि आपकी एक कोई भी फर्म है, उस फर्म की हमारी 4 डिफरेंट बिल्डिंग है, जिसमें एक हमारी ऑर्थोपेडिक है, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक आपकी पेडियाट्रिक्स है और एक हमारी न्यूरोलॉजी है। अब इनके अंदर आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स जो लगे हुए हैं, यदि हम अपने कंप्यूटर की संख्या देखें तो जो हमारी पेडियाट्रिक्स है उसके अंदर आपकी 40 कंप्यूटर लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो आपका है उसके अंदर 140 कंप्यूटर लगा हुआ है। न्यूरोलॉजी जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपके 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 50 कंप्यूटर लगा है, और ऑर्थोपेडिक जो आपकी है वो आपके 80 कंप्यूटर को, ठीक है। ये हमारे है कंप्यूटर की संख्या। अब इसके बाद यदि हम आगे देखें तो आगे आ जाता है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस टू ऑर्थोपेडिक, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका है 55 मीटर। आगे हमारा डिफाइन है, जो डिस्टेंस है वो किसमें आपका मीटर्स में है। इसके बाद जो न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी से लेके
और जो आपका डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उसका जो डिस्टेंस है वो आपका है 30 मीटर का। इसके बाद यदि हम देखें कि जो ऑर्थोपेडिक्स है हमारी, ऑर्थोपेडिक्स से लेके और जो न्यूरोलॉजी है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 70 मीटर है। इसके बाद यदि हम देखें तो आपके पास आगे है जो पेडियाट्रिक्स है यूनिट है, वहां से और जो एडम ब्लॉक है इनका जो डिफरेंस है वो आपका 40 मीटर का है। और इसके बाद जो आपका पेडियाट्रिक्स यूनिट है, यहाँ से जो ऑर्थो है इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है और ये है हमारा 110 मीटर। ये आपका एक प्रकार का डायग्राम बन गया। अब यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को, यदि आपने डायग्राम बना लिया है, देन ऑल क्वेश्चंस हैव टू सो इजी। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, suggest the most suitable location to install the main server of this institution to get efficient connectivity। यानी कि जो efficient connectivity है वो आपने देखनी है। और already we have stated that a server are installed in that particular building where the number of systems are maximum। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम यदि हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो कितने हैं, 140 जो मैक्सिमम है। इसलिए आपका जो सर्वर है वो आपका प्लेस होगा कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जस्ट द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी फॉर द बिल्डिंग हैविंग सर्वर विद ऑल द अदर बिल्डिंग। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो कनेक्टिविटी है वो देनी है, तो सबसे बेस्ट लेआउट कैसे होगा। बेस्ट लेआउट में क्या है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है इस ब्लॉक से हम सभी को आपस में जोड़ें। यदि हमने ये कनेक्टिविटी दी है तो ये जो कनेक्टिविटी होगी दिस इज द बेस्ट केबल लेआउट फॉर effective network connectivity. Then we have suggest the devices to be installed in each of the building for connecting computer installed within the building out of the following। अब यहाँ पे आपके डिवाइस दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने कौन से डिवाइस वहाँ जोड़ने पड़ेंगे, वहाँ लगाने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो बिल्डिंग है वो कनेक्ट करने इसको कंप्यूटर। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास गेटवे आएगा। गेटवे क्या है, गेटवे आपका एक वो हार्डवेयर है जो आपका डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को आपस में जोड़ेगा। यानी दिस सिमिलर टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए वी कैन यूज गेटवे। देन वी हैव मॉडेम व्हिच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। तो इन दोनों में से आपका कोई डिवाइस वहां पे नहीं होगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा है और उन सभी को हमने आपस में जोड़ना है। इसलिए जो स्विच है हमारा, स्विच आपका एक वो डिवाइस होगा which can be used to communicate or to connect the computer in the buildings. Then next question we have suggest the topology of the network which can be efficiently connecting each computer installed in each of the building of the following। अब यहाँ से टोपोलॉजी आपने बतानी है जो बेस्ट टोपोलॉजी आपकी वहाँ पे है। इसमें हमारी टोपोलॉजी जो दी है वो बस टोपोलॉजी दी है और स्टार टोपोलॉजी दी है। नेटवर्क केबल जो दिया यहाँ पे वो हमारा सिंगल प्लेट टेलीफोन केबल है, कोएक्सियल केबल है और अल्टरनेट केबल। तो यहाँ पे यदि हम बात करें आपके बेस्ट जो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में क्या होगा कि हमारे पास एक डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया होगा जिसके ऊपर हम सभी नोड को आपस में जोड़ेंगे। बट दिस इज नॉट द मोस्ट सुटेबल फॉर एनी नेटवर्क बिकॉज यदि यहाँ पे इस केबल के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो पूरा नेटवर्क जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वी कैन यूज स्टार टोपोलॉजी इंस्टेड ऑफ बस टोपोलॉजी इन ए बिल्डिंग सो दैट एवरी नोड कैन बी कनेक्टेड सेपरेट। देन वी हैव नेटवर्क केबल। अब सिंगल पेयर हमारे टेलीफोन, उसके बाद हमारे कोएक्सियल केबल और तीसरा हमारा है अल्टरनेट केबल। अब अल्टरनेट केबल हमने बताया था कि भाई अल्टरनेट केबल क्या है, ये हमारा एक वो डिवाइस है, हमारे वो क्रम है जिसके अंदर डाटा हमारा बोथ साइड में ट्रेवल करेगा, यानी कि एक ही टाइम में डाटा हमारा दोनों साइड में हम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अल्टरनेट केबल है वो आपका एक नेटवर्क केबल जो वहाँ पे हो सकता है। इसके बाद यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ से सिर्फ जो आपके एग्जाम में आएगा वो आपका एग्रीगेशन मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। ये हमारा जो कंप्यूटर साइंस के
बच्चे हैं उनके लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल हमारा एक तरह का मेथड होता है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी डाटा कम्युनिकेट करने के लिए। सपोज कीजिएगा कि आपका एक पर्सन है ए और एक पर्सन है आपका बी, ये दोनों आपस में बातें करना चाह रहे हैं, बट इनका जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन का वो डिफरेंट है। जो लैंग्वेज बी की है वो लैंग्वेज ए नहीं समझ पा रहा है, और जो लैंग्वेज ए की है वो लैंग्वेज आपका बी नहीं समझ पा रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये कौन सा वो मेथड यूज करें ताकि ये अपनी भाषा को या अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं, जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो आपका कम्युनिकेट कर सके। अब जो ये मेथड अडॉप्ट करेंगे वो हमारा एक प्रकार का प्रोटोकॉल होगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, साइबर प्रोटोकॉल में क्या है, प्रोटोकॉल हमारा डिफाइन करता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड हाउ वी कैन कम्युनिकेट। यानी कि प्रोटोकॉल आपको स्पेसिफाई करेगा, आपका वो डिफाइन करेगा कि हमने क्या तो कम्युनिकेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है। इट आल्सो हेल्प इन सेटिंग अप ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमने जो कम्युनिकेशन करना है उसके लिए हमारी कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा हम यूज करें ताकि हमारा दोनों का जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ डाटा है, वो आपका पॉसिबल हो जाए। देन मल्टीपल प्रोटोकॉल डिफाइंड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क विच आर एल ओ। अब जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग अपने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, अपने जो विचार हैं उनको दूसरों को बताने के लिए डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करता है, उसी तरीके से जो हमारे कंप्यूटर है वो भी अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, अपने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए अपने नेटवर्क के ऊपर दे कैन आल्सो अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। अब उसके अंदर सबसे पहले प्रोटोकॉल है टीसीपी, दिस इज known as transmission control protocol. Already we have studied, but again we will study. Then we have internet protocol, FTP, file transfer protocol, PPP, point to point protocol, SMTP, simple mail transfer protocol, POP3, post office protocol. Then we have Telnet, which is also known as remote flow. अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपका है, यहाँ पे मैंने दो टर्म यूज की है। एक आपकी है HTTP, which is known as Hyper Text Transfer Protocol, and then we have HTTPS, Hyper Text Transfer Protocol, और यहाँ पे हमने सिर्फ एक शब्द यूज किया है एक्स्ट्रा, वो आपका है S। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between HTTP और HTTPS? तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो हमारे पास एक क्लाइंट है और एक आपका सर्वर है, जहां पे मैंने सिर्फ एक HTTP यूज किया है, एक प्लेन टेक्स्ट के रूप में मैंने डाटा सेंड कर रहा हूं। दूसरी साइड मेरे पास वही क्लाइंट है और वही एक सर्वर है, बट मैंने यूज किया है आपका HTTPS। HTTPS S का मतलब है इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी, मींस जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, इट इज सिक्योर कनेक्शन। बट इफ वी हैव जस्ट HTTP, देन द कनेक्शन इज इनसिक्योर। HTTP हमारा क्या है? ये हमारा एक सिक्योर वर्जन है इसका HTTP। HTTPS is the secure version of HTTP and it is also a protocol which can be used between a browser। अब हम आगे चलते हैं हमारे TCP/IP। अब TCP में क्या है? हमारे यहाँ पे एक सेंडर है who is sending the data to a receiver। The data, how it is transferred? Data can be sent in the form of packets। Means सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारा TCP/IP है ये हमारा कब आया? It is introduced in January 1983 by ARPANET, and from there researchers began to assemble the network of networks, which is also known as Internet. IP protocol deal with the packets which here these are sending, but TCP unable to host to establish a connection। मींस जो TCP है उसका काम है कि जो सेंडर और जो रिसीवर है इनके बीच में कनेक्शन क्रिएट करेगा, जबकि जो हमारा IP है, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो क्या करेगा? इट एक्सचेंज स्ट्रीम्स ऑफ डाटा। IP is also responsible for delivering packet from the
secure host to the destination host based on the IP address mentioned in the packet header. जो भी आपका पैकेट होगा मीन्स एवरी पैकेट मस्ट हैव टू एड्रेस, वन इज सोर्स एड्रेस एंड सेकंड वन इज destination address. Then we have FTP, means file transfer protocol. FTP, which is the simplest and most secure way to access file over the internet. इनके आपकी इंटरनेट के ऊपर कोई भी फाइल को सेंड करने का सबसे सिक्योर जो मेथड और सबसे सिंपल जो आपका मेथड है, इट इज नोन एज FTP. इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम वी कैन ट्रांसमिट एंड शेयरिंग ऑफ फाइल. इसमें हमारे कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, इसमें आपका कोई भी डाटा हो सकता है विच कैन बी ट्रांसफर. दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जो हम अपलोड और डाउनलोड जो आपका होता है वो आपका एक प्रकार का FTP है, मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. एंड इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर. कोई दूसरा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से डाटा हमने अपने कंप्यूटर में, यानी कि हमने कंप्यूटर के ऊपर से या इंटरनेट के ऊपर से किसी फाइल को डाउनलोड करना है, तो इसका मतलब क्या है, वी आर एक्सेसिंग द रिमोट कंप्यूटर. टू शील्ड ए यूजर फ्रॉम वेरिएशन इन फाइल स्टोरेज सिस्टम अमंग डिफरेंट होस्ट. देन वी हैव आल्सो टू ट्रांसफर डाटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली. FTP जो आपका है, इट यूजेस द इंटरनेट TCP/IP प्रोटोकॉल टू एनेबल डाटा ट्रांसफर. ये जो हमारा FTP है वो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करेगा अपने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए. देन वी हैव TPP. TPP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का मतलब है कि आपने अपना कनेक्शन क्रिएट करना है, यानी कि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा लिंक प्रोटोकॉल. इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपने अपना जो लिंक है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. जब आप लिंक इस्टेब्लिश करेंगे, मींस सम ऑफ द टाइम when you are connected to a internet, then you just enter your username and password. जब आप अपना यूजरनेम और पासवर्ड यूज कर रहे हैं और अपने नंबर को डायल कर रहे हैं, मींस यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द लिंक. देन दैट इज password and username are authentications. If this authentication success, then we are able to create the connection. But if the username or password provided by the user is incorrect, then the connection becomes failure and the link was terminated, and again it will ask to create the link or ask to enter the password. Here the login and password are required. Dial the number provided to you by the ISP. यहाँ पे कई बार शॉर्ट फॉर्म हमारी ये भी आ जाती है. ISP means Internet Service Provider, the company who is providing the services of internet to the user. Then we have SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. This is a kind of protocol which can be used for sending email messages to other network. मीन्स यदि आपने किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कोई भी मेल आपने सेंड करनी है, तो उस मेल को सेंड करने के लिए यू कैन यूज SMTP. SMTP क्या करेगा, इट ओनली हैंडल आउटगोइंग मैसेजेस, इट डज नॉट क्रिएट मैसेज. ये सिर्फ हमारे मैसेज को सेंड करेगा, लेकिन ये मैसेज क्रिएट आपका नहीं करेगा. इसके बाद हमारा इसी से जुड़ा होता है हमारा POP. POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, विच कैन बी यूज्ड टू रिसीव मैसेज. मींस हम कह सकते हैं कि जो SMTP है, इट कैन बी यूज्ड टू सेंड द मैसेज and on the other hand POP can be used to receive the message. बट यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो एब्रिविएशन है वो आपके एग्जाम में आता है. SMTP uses TCP पोर्ट नंबर 25 फॉर स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन. अब यदि आप इन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा डीप में हम जाएं, तो एवरी प्रोटोकॉल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स टू क्रिएट द कनेक्शन. Then we have POP3, means this is the version 3 post office protocol.
3. It access the mailbox and download messages to the local. Means this is the kind of protocol which can be used to read the message even when we have not the facility of internet. यानी कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, बट वन टाइम आपने उस मैसेज को आपका डाउनलोड कर लिया, आपके सिस्टम में उसके एक्सेस कर लिया है, आपके इनबॉक्स में वो मैसेज आ गया है, तो उस मैसेज को रीड करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल को करते हैं. We can download messages to the local computer. User can receive message with the help of POP protocol. There is two different versions of this protocol, that is POP2 and POP3. Valid username and password are required to connect through POP, and then POP3 protocol blocks inbox. अब POP3 protocol blocks inbox means blocks inbox का मतलब है कि जो आपका इनबॉक्स है उसको ब्लॉक कर देता है और एक ही टाइम में, यानी कि एक सिंगल टाइम के अंदर एक से अधिक यूजर जो आपका इनबॉक्स है उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं. अब इसके बाद हमारा है टेलनेट, जो आपका लास्ट है इसके अंदर. टेलनेट स्टैंड फॉर, टेलनेट का मतलब है हमने जो लॉगिन करना है वो रिमोटली करना है. इट इज ए काइंड ऑफ सर्विसेज which provide remote logging and help the user to log on to another user's terminal without being its original user. क्या आप ओरिजिनल यूजर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने एक दूसरे सिस्टम को एक्सेस करना है. यूजर who is logging to their own system can also get access to log on to other user system and perform various functions such as accessing file or sharing file to or from the computer system. With Telnet, a user logs in as a regular user with whatever privileges they may have been granted to the specific application data on that computer. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. अब इसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. और जब हम रिकैप करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने स्टडी किया है और उसके अंदर हमने पढ़ा कि नेटवर्क हमारा क्या होता है, नेटवर्क के अंदर हमारा जो कनेक्शन है वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर तो रिकैप में हमारा ये है कि जो नेटवर्क है हमारा, नेटवर्क हमारा बेसिकली चार टाइप का होगा, जिसमें हमारा पैन, लैन, मैन और वैन होगा. पैन आपका मैक्सिमम 10 मीटर का एरिया कवर कर सकता है. लैन आपका 10 मीटर तक का एरिया, 10 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकता है. यदि हम बात करते हैं मैन की, मैन आपका एक वो नेटवर्क है इन विच वी कैन कवर एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर, एंड देन इन वैन वी हैव नो अपर लिमिट फॉर द network. On the other hand, we have also studied about different type of terminology like nodes. Then we have NIC, server and so many. Node क्या है? Node हमारे वो डिवाइसेज होते हैं जो आपके नेटवर्क के अंदर जुड़े होंगे. उसमें आपका प्रिंटर भी हो सकता है, उसमें हब भी हो सकती है, उसमें आपके स्विच भी हो सकते हैं. उसमें हमारा NIC मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, which is also known as NIU, network interface unit, it may also include. Then we have different type of switching techniques in which we can send the message. There is basically 3 type of switching technique. First one, we have circuit switching, in which we can just create the connection between the users and then start transmission. After that, we have packet switching, in which data can be sent in the form of packets. Every packet must have a unique ID. After reaching on the destination, all these packets are reassembled and then it becomes a message. In third type of switching, we have message switching, in which data can be sent into the form of packets, but it reassembles on the other, it store as a buffer and then retransmitted to other nodes. Then we have different network devices where we have studied about modem, about switch, hub, then RJ45 means register jack 45, which can be used to create the physical connection between the nodes. Then we have bridge, gateways, repeaters, and then we have different type of data transmission where we have studied about analog mode,
digital mode. Then we have also studied about synchronous and asynchronous transfer mode, and we have also studied about parallel and serial communication. In today's session, we have just studied about the type of transmission media. We have basically two type of transmission media. One is guided media and second one is unguided media. In guided media, connection can be created with physical device or physical cable, we can say. इनके हमारे फिजिकल माध्यम से हम कोई भी कनेक्शन क्रिएट करेंगे. बट इन अनगाइडेड मीडिया connection can be created without wire or wireless. In unguided media, data can travel through air, which is not so secure. Then in guided media, we have studied about twisted pair cable. We have studied about coaxial cable. Twisted cable is subdivided into two subcategories, UTP and STP. It can cover 100 meter of distance. In coaxial cable, there is a limit which can cover a distance up to 185 meter to 500 meter, and in fiber optics there is no upper limit. In unguided media, यदि हम बात करें तो वहां पे हमारा जो अनगाइडेड मीडिया है उसके अंदर जो रेडियो वेव है, दिस इज ए काइंड ऑफ मीडिया वेयर देयर इज नो पेनिट्रेशन प्रॉब्लम. मींस इन रेडियो वेव द डाटा कैन क्रॉस थ्रू हार्ड ऑब्जेक्ट, बट इन माइक्रोवेव और इंफ्रारेड और we have laser, we have a penetration problem. In this session we have studied so far. So dear students, हमें उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा. धन्यवाद.